शुभकृतनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे दशम्यां पुनर्वसु नक्षत्र युक्त वासरः वासरस्तु जयवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्रीमान् गोत्रोद्भवस्य మీ గోత్రము పేరు నక్షత్రం చెప్పుకోండి. కుటుంబస్య క్షేమః స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ सिद्ध्यर्थं गृहे सर्वमंगल कार्याणि अनुकूल सिद्ध्यर्थं गृहे सर्वशोक शत्रु निवासन सिद्ध्यर्थं गृहे सकल भूतप्रेत पिशाच बाधा निवृत्ति सिद्ध्यर्थं गृहे सकल विषहरण निवारण सिद्ध्यर्थं गृहे सकल संपत्कर सिद्ध्यर्थं गृहे सकल विद्या प्राप्ति सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजकार्ये सकल आनुकूल प्राप्ति सिद्ध्यर्थं ये ये ग्रहाः अरिष्टः स्थानेषु स्थितां ग्रहाणाम् अनुकूल अवाप्ति सिद्ध्यर्थं ये ये ग्रहाः शुभः स्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणाम् अत्यंत अनुकूल अवाप्ति सिद्ध्यर्थं श्री अलर्मेल मंगा पद्मावती समेत वेंकटेश्वर स्वामिनः देवता उद्देश्य देवतां प्रीत्यर्थम् अस्याः देवदेव्याः पद्मावतीनायिक्याः सन्निधौ प्रातःकाल समये शांति कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये ततः निर्विघ्न परसमाप्ति अवाप्ति सिद्ध्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये तदंगत्वेन स्थलशुद्ध्यर्थं देहशुद्ध्यर्थं आत्मशुद्ध्यर्थं द्रव्यशुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थ शुद्ध्यर्थं शुद्धि पुण्याः वचनं करिष्ये ततः शांति कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन करिष्ये दर्भेष्वासीनः दर्भान् धार्यमाणः पवित्रः प्राणानाय ஜாதவேதோம ஆவக தங்க நிறம் உடையவளும் பாப்பத்தை போக்குபவளும் பொன்னாலும் வெள்ளியாலும் பண்ணின ஆபரணங்களை தரித்தவளும் சகல ஜீவராசிகளையும் சந்தோஷமாக வைத்திருப்பவளும் பொன்னே உருவாக தோற்றமளிப்பவளுமான ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவியின் அருள் நமக்கு கிட்டும்படி ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு எனது வர்ணனையை ஆரம்பிக்கிறேன். இன்றைய வர்ணனையை செய்வது திருமதி டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ணசுவாமி. பக்தர்களே, இன்று மங்களவாரம் எனப்படும் செவ்வாய்க்கிழமை. ஆகவே மங்களகரமான தாயாரை நாம் இன்று மங்கள லக்ஷ்மியாகவே போற்றுவோம். அந்த தாயாருக்கு அவளது மணாளரான சீனிவாச பெருமானோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து தாயாரின் பெருமாளின் திருவருளை பெறுவோம். பக்தர்களே, திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகமப்படி கலச பூஜை, பின்பு விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், அதைத் தொடர்ந்து சுத்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம், இவை அனைத்தும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்போது நடைபெற உள்ளது. பக்தர்களே, நாம் முதலில் ஏன் தாயாரை சேவித்துவிட்டு பெருமாளை சேவிக்கப் போக வேண்டும் என்று பெரியோர்கள் சொல்வது ஏன் தெரியுமா? இதற்கு பல உதாரணங்கள் உண்டு. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் குகப்படலத்தில் குகனை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது கூட முதலில் சீதா பிராட்டியின் அனுகிரகத்தை அவன் பெற்ற பின்னரே ஸ்ரீராமர் ஏற்றுக்கொண்டாராம்.
அதே போல ஸ்ரீரங்கத்தில் ராமானுஜர் சரணாகதி பெற போகும்போது கூட ஸ்ரீரங்க நாச்சியாரை முன்னிட்டு கொண்டே ஸ்ரீரங்கநாதரிடம் சரணாகதி கத்தியம் செய்தாராம். இதற்கு பெரியவாச்சான் பிள்ளை எப்படி வியாக்கியானம் செய்கிறார் தெரியுமா? கொடுப்பவன் பகவானாக இருந்தாலும் அந்த பகவானே நமக்கு எல்லாம் என்கிற உறுதி நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் அல்லவா? அந்த உறுதியை, நம்பிக்கையை நமக்கு அளிப்பவள் தாயார்தான். அவளது கடாட்சம் பெற்று நமக்கு பகவானிடம் நம்பிக்கை ஏற்பட்டு விட்டது என்றால் எது நடந்தாலும் நாம் கவலைப்படவே மாட்டோம். பகவான் இருக்கிறார், அவர் பார்த்து கொள்வார் என்று விசிராந்தியாக இருப்போம். ஒரு பக்தர் அவர் காலையில் எழுந்தது முதற்கொண்டு எதற்காவது கவலைப்பட்டு கொண்டே இருப்பாராம். இவ்வளவு ஏன், பகவான் கீதையில் அருளிய சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேக்கம் சரணம் விரஜ அகம் த்வா சர்வ பாப்பேப்யோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுச்சக என்கிற ஸ்லோகத்தை கூட சொல்லிக்கொண்டே இருப்பாராம். அப்படியும் கவலைப்படுகிறார் என்றால் என்ன அர்த்தம்? அவருக்கு பகவான் மீது உறுதியான நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை என்று. அதாவது தாயாரின் கடாட்சம் அவருக்கு கிட்டவில்லை. நாம் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறோம்? நம் குடும்பத்தை நாம் தான் சுமக்கிறோம் என்று. ஆகவேதான் நமக்கு பின்னால் இந்த குடும்பம் என்ன ஆகுமோ என்று கவலைப்படுகிறோம். கூரத்தாழ்வார் சொல்கிறார், என் மனைவி மக்களை நான் தான் ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைத்தேன். ஆனால் பகவான் அவர்களை மட்டுமல்ல, என்னையும் சேர்த்து அவனே ரட்சிக்கிறான் என்பதை இப்போது புரிந்து கொண்டேன். இந்த ஜகத்தையெல்லாம் ரட்சிக்கும் ஜகத் ரட்சகன் அவன். அவன் அப்படி ரட்சிக்க வேண்டுமானால் ஜகத் ரட்சியான தாயார் அவளோடு சேர்ந்திருக்க வேண்டும். சூர்பனகையை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவள் ராமனிடம் மட்டும் பற்று கொண்டாள். தனது காது, மூக்கு எல்லாவற்றையும் இழந்தாள். ராவணன் சீத்தையை மட்டும் பற்றினான், தலையே போனது. ஆனால் விபீஷணன் சீத்தையை முன்னிட்டு கொண்டு ஸ்ரீராமனை பற்றினான், ராஜ்யத்தோடு சேர்த்து சிரஞ்சீவியானான். ஆகவேதான் ஒருவரை விட்டு ஒருவரை சேவித்து பலன் பெறலாம் என்று நினைப்பது ஒரு மடமை. இருவருடைய திருவடிகளையும் ஒரு சேர பற்றி கொள்ள வேண்டும். அதிலும் முதல் திருவடி தாயாருடையதாக இருக்க வேண்டும். நம்மை பகவானிடம் சேர்ப்பவளே தாயார்தானே. அவளுடைய அந்த வாத்சல்யமும் கருணையும் தானே நம்மை அந்த எம்பெருமானிடம் கொண்டு சேர்க்கிறது. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் கூட பாருங்கள், சீதா பிராட்டி அருகில் இல்லாத போதுதான் ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு தவறு செய்த தாட்டகை, வாலி, கரதூஷணர்கள், ராவணேஸ்வரன் போன்றவர்களை தண்டித்தார். ஆனால் தேவி அருகில் இருந்து வேண்டிக் கொண்டதால் காகாசுரன் பிழைத்தான். ஆகவேதான் நாம் முதலில் ஸ்ரீயாகிய தாயாரை தரிசித்து அவளது திருப்பாதங்களை ஆசிரியிப்போம். பின்பு அவள் மூலமாக திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானின் திருவருளை பெறுவோம். இது திருமலையானே நமக்கு விதித்திருக்கும் கட்டளை, வழி, உபாயம் என்று கூட சொல்லலாம். முதலில் திருச்சானூர் சென்று தாயாரை தரிசித்துவிட்டு அவளது பரிபூர்ண கடாட்சத்தை பெற்றுவிட்டு பின்பு என்னிடம் வாருங்கள் என்று எம்பெருமானே திருவாய் மலர்ந்து அருளியுள்ளார் அல்லவா. திருவுக்கு மணாளனானதால் எம்பெருமான் திருமால், திரு என்கிற மகாலட்சுமியும் மால் என்கிற ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவும் சூரியனும் ஒளியும் போல இணைபிரியாமல் இருக்கும் ஆதி தம்பதிகள். இந்த ஜகத்துக்கே தாயாதனால்தான் இவள் ஜகத் ஜனனி. ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் இன்னுயிர் துணைவியாதலால் இவள் விஷ்ணு பத்னி. கருடன், ஆதிசேஷன், ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனர் போன்ற நித்தியுசீர்கள் தொடங்கி மிக 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 எளியவர்களான நம் போன்ற பக்தர்கள் வரை அனைவருக்கும் தலைவி தாயார்தான். ஆகவேதான் தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டே எம்பெருமான் மகாவிஷ்ணு ஸ்ரீயப்பதே, ஸ்ரீபதி, ஸ்ரீகாந்தன், ஸ்ரீநாதன் என்று போற்றப்படுகிறார். நீருண்ட கார்மேகத்தின் நடுவில் மின்னல் ஒளிர்வது போல நீலமேக சியாமளனான ஸ்ரீமன் நாராயணனின் திருமார்பில் பொன்னிறமான ஸ்ரீ மகாலட்சுமி வீற்றிருந்து எம்பெருமானின் இருண்ட அந்த திருமார்பையே பிரகாசமாக்குவதாக சுவாமி தேசிகன் ஸ்ரீஸ்துதியில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அல்லவா. மானாதீத பிரதித விபவாம் மங்களம் மங்களானாம் வக்ஷக பீட்டிம் மது விஜயனு பூஷயந்தீம் ஸ்வகாந்தியா. இதைப் போன்றே எம்பெருமானின் திருமார்பில் வீற்றிருக்கும் திருமகளைக் கண்ட பேயாழ்வார் இப்படியாக போற்றிருக்கிறார். சிவந்த திருமேனியுடன்
திகழும் திருமகளையே பார்த்து 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 திருமாலின் திருக்கண்கள் செந்தாமரை போல சிவந்து விட்டதாம். கார்மேக நிறம் கொண்ட திருமாலையே எப்போதும் பார்த்து கொண்டிருப்பதால் தாயாரின் கருவிழிகள் இன்னும் கூட கருத்தனவாம். அது மட்டுமல்ல, தாயாரின் கருவிழிகள் பட்டதால் தான் திருமாலின் திருமேனி இன்னும் கருத்து போக திருமாலின் சிவந்த வேலிகளால் நோக்கப்பட்ட தாயார் மலர் மேனி இன்னும் சிவந்து விட்டதாம். येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमाने रध्यते ऋषिभिः संवृतकुंभसं सर्वकुं सपोतमश्नादे सुदिदं मातरश्वना पावमानेर्यो अध्यते ऋषिभिः संवृतकुंभसं तस्मै अधोदगं पावमाने स्तयनेः सुदगाहिपय स्वदेः ऋषिभिः संवृतोरसः ब्राह्मणेषु पावमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमुं कामान् समर्दयन्तु नः देवेर्देवे समाभृताः पावमाने स्वस्तैने सुदिगाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संवृतोरसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यपुणन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मवितो वयं बोधं ब्रह्ममुनेमहे इन्द्रसुनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरुणो समीच्याः यमो राजा अप्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवस्वः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातुभेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अधिपुरुषः सजातो अत्यारिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण अभिषा देवा यज्ञमतन्वत असन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रेष्म इद्म शरद्दवी
ततो विराल जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यारिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं वृषदाज्यम् पशोऽग्रस्ताग्रश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतर्चः समानि जज्ञिरे छन्दाग्रसिजज्ञिरे तस्माद्यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकजो भयादतः गावो जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः तं यज्ञं वर्गेषु प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षायश्च ये यत्पुरुषं यदधुक्कतिधा व्याकल्पयन् मुखं किमस्यासीत्यं बाहो किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासेत् बाहोराजन्यः कृतः घोरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याज्ञसोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसेदन्तरिक्षज्ञशीर्ष्णो समवर्तत पद्भ्याम्भोम्यर्दिश्रोत्रात् तथा लोका अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत असन्दो अस्यासेदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धविः सप्तास्यासं परिधयस्त्रः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागं महिमानः स्वचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ते देवाः अद्य सम्भृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेदिदन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे मेदाहमेदं पुरुषं महान्तमादित्यवाहर्णं तमसः परस्तात् तमेव वेदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं वरे पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् अतस्थुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मय रुचं ब्राह्मणं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्तैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा संवसे श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ यात्तम् इष्टन्नेषाणामम्म ईशान सर्वलोकम्म ईशानः तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदो चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरोषादधि नैनामोर्ध्वन्नचर्यञ्चन्नमध्ये परे जग्रभत् तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः हिरण्यगर्भ इत्येषः एषोह देवः प्रदिशो न सर्वा पूर्वोह जातः स गर्भे अन्तः
स एव जातः स जानिष्यमाणः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सर्वतो मुखः यस्मान्न जात इत्येषः वेनस्तत्पश्यन्निहेदं गुहासत्यत्र विश्वं भवत्येकनीलम् तस्मिन्निदग्सञ्च विचैति सर्वज्ञ स ओतः प्रोतश्च विभो प्रजासु तद्वोचेदमृतन्न विद्वान् गन्धर्वो धाम बिभृत गुहासत् त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिता सत् स नो बन्धुर्जनिता स वेदाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृते ये धामन्नध्यैरायन्ता परेत्य भूतानि परेत्य लोकान् परेत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभिसंविवेश परिद्या वा पृथिवे सद्य यत्त्वा परे लोकान् परिदिशः परे स्वाहा ऋतस्य तन्तं विदातं विसृत्य तदा पश्यत्तदा भवत्तदासीत् तदा सस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् सनिं मेधामायासि षड्यस्वाहा यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधावेनाङ्गुरो स्वाहा इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं च श्रियमश्नुताम् मये देवा दधतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा अपेतोऽयन्द्रपणयोऽसं न देवभीयवाः अस्य लोकस्वतावादः युभिरहोभिरक्तभिर्व्यक्तं यमोददात्ववसानमस्मै सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्या लोकमिच्छतो यन्तामुश्रियाः वायुः पूर्णात् सविता पूर्णात् त्वग्निर्भ्राजसा सूर्यस्य वर्चसा विमुच्यन्तामुश्रियाः अश्वत्थेवो निषदनं वर्णेवो वसतिष्कृता गोभाज इत्यलासथयत्सनवधपौरुषम् सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थावपद तस्मै पृथिवीशम्भव प्रजापतौ त्वादेवतायामुपोदके लोके निदधाम्यसौ परं मृत्यो अनुपरे हि पन्थान्यस्ते अन्ययितारो देवयानात् चक्षुष्मदे शृण्वते ते ब्रवीमिमाणः प्रजाज्ञ शीर्षो मोदवीरान् संवादशज्ञायते गृणशन्ते भवन्वेष्टकाः सन्ते भवन्त्वग्नयः पार्थिवासो मात्वाभिषोऽशुचन् कल्पन्तां ते दिशस्त्वभ्यमापशिवतमास्त्वभ्यं भवन्तु सिन्धवः अन्तरिक्षज्ञ शिवन्तभ्यं कल्पन्तां ते दिशः सर्वाः अश्मन्वतेरेयते सज्ञारभध्वमुत्तिष्ठत प्रदारता सखायः अत्राजहे मोषे बाये असङ्क्षिवान् अयमुत्तारे माभिवाजान् अपाघमपकिल्बेषमपाकृत्यामपोरपाः अपामार्गत्वमस्मदपदुष्मभ्यज्ञासुवा त्वमेत्रिया न आप ओषधयः सर्वदुर्मेत्रियास्तस्मै सन्तो योऽस्मान् वेष्टयं च वयं विष्मः अनड्वाहमन्वारा भामहे स्वस्तये
स न इन्द्र इव देवेभ्यो वह्निः सन्तारणो भव त्वद्वयन्तमासस्परेष्वः पश्यन्त उत्तरम् एवं देवत्रा सूर्यमघन्मज्योतिरुत्तमम् अग्न आयोज्ञशिपवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनाम् आयुष्मानग्ने हविषा वृधानो घृतप्रतीको घृतयो निरधे घृतं वेत्त्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमान् स्वाहा इमं जीवेभ्यः परिदिन्दधामिमैषन्नो गदपरो अर्थमेतम् शतञ्जेवन्दो शरदः पुरोचेरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन परिमे गामाने शतपर्यग्निमाघृषत देवेष्वक्रतश्रवः कयिमां आदधर्षते द्रव्यादमग्निं रहेणो मे दोरयमराज्यं गच्छतु रे प्रवाहः इहैवायमितरो जातवेद देवेभ्यो हव्यं वहत प्रजानन् इषेराये रमस्वसहसे जुम्न ऊर्जे अपत्याय घृतप्रदीको घृतयो निरधि घृतं वेत्त्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमान् स्वाहा मञ्जेवेभ्यः परिधिन्दधामिमैषान्मुगदपारो अर्धमेतं शतञ्जेः वन्दु शरदः पुरोचेरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन परिमे गामाने शतपर्यग्निमाघृषत देवेष्वक्रतश्रवः कयिमाम् आदधर्षते
द्रव्यादमग्न्यं रहेणोमि दूरं यमराज्यं गच्छतुर्प्रवाहः इहैवायमितरो जातभेदा देवेभ्यो हव्यं वाहत प्रजानन् वह पपाञ्जातवेद पितृभ्यो यत्रेणान्वेद्धनेतान् परागे मेधसकुल्या उपतान् श्रावन्तु सत्या येषामाशिषस्तन्तु कामा स्वाहा स्योना पृथिविनो भवान् ऋक्षरा निवेशने इच्छाः न सर्म सप्रथाः अपानशोषो च दघम् अस्मात् त्वमदे जातो त्वदयं जायतां पुनः असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा अपानशोषो च दघम् ऋचं वाचं प्रपद्ये मनोयजो प्रपद्ये सामप्राणं प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये अगोजः सहोजो मय प्राणापाणो यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वाते तृण्णं बृहस्पतिर्मे तद्दधातो सन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः कयानश्चित्र आभुवदूते सदा वृधः सखा कया सचेष्टया वृता कस्त्वा सत्यो मदानां मग्नहष्टो मत्सदन्दसः धृत्वा चेदारुजे वसो अभेषुणः सखे नामविता चरुद्रोणां सतं भावास्योतिभिः कया त्वन्न ओत्याभिप्रमन्दस वृषन् कया स्तोत्रभ्य आभारा इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तद्विपदे शञ्चतुष्पदे शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः विष्णुरुक्रमः शन्नो वातः पवताग्निशन्नस्तपतु सूर्यः सन्नः कनिकदद्देवः देवः पर्जन्यो अभिवर्षतो अहानिशं भवन्तु नष्टज्ञरात्रिप्रतिधीयताम् षण्ण इन्द्राग्ने भावतामवोभिषण्ण इन्द्रावरुण हतः व्या षण्ण इन्द्रापूषणा वाजसातौ स्वमिन्द्रा सोमा सुविताय संयोः षण्णो देवेरभिष्टाय आपो भवन्तु पेतये संयोरभिस्रावन्तु नः श्योणा पृथिवीनो भवान् क्षरा निवेशने यच्छा न सर्म सप्रथाः आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जदधातना महेर्णाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्तस्य भाजयते खणाः उषतेरेव मातराः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वधा आपो जनयथा जनः यो शान्तिरन्तरिक्षज्ञशान्तिः पृथिवी शान्तिरापशान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धृते दृग्नः मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समेक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समेक्षे मित्रस्य चक्षुषा समेक्षामहे धृते दृग्नः मा योक्ते संव्रजे जेव्यासं योक्ते संव्रजे जेव्यासं नमस्ते अरसे ज्योतिषे नमस्ते अस्त्वत्तिषे
अन्याग्रस्ते अस्मत्ता बन्धहेदयः पावको अस्मभ्यग्न शिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तमयत्नवे नमस्ते भगवन्नस्त्वयत स्वसमेहसे तो यत समेहसे ततो न अभयं करो शनः करो प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः सुमित्रियाणः पवोषादयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु अस्मान् दृष्टियं च वयं दृष्मः देवहेदं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं देवस्य त्वासवेदो प्रसवेश्वरोर्बाहुभ्यां पोष्णास्ताभ्याम् आददे नारीरसे युञ्जते मनावुत युञ्जते द्विजो विप्रस्य बृहतो वे पश्चिताः विहोत्राददेवयुनाविदे कयन्महे देवस्य सवेदो परिष्ठुतिः देवेद्या वा पृथिवी मखस्य वा मध्यशिरोराद्यासं देवयजने पृथिव्याः मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे देव्यो वम्र्यो भूतस्य प्रथमजा मखस्य भोज्यशिरोराद्यासं देवयजने पृथिव्याः मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे यद्यग्रासेर्मखस्य तेद्यशिरोराद्यासं देवयजने पृथिव्याः मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे इन्द्रश्चौजस्थमखस्य वोद्यशिरोराद्यासं देवयजने पृथिव्याः मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे प्रयतो ब्रह्माणस्पति प्रदेव्येतु सोनृता अच्छा वीरन्नर्यं पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञन्नायन्तु नः मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखस्य शिरोसे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखस्य शिरोसे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखस्य शिरोसे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे अश्वस्य त्वा वृष्णशक्नाधोपयामि देवयजने पृथिव्याः मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे अश्वस्य त्वा वृष्णशक्नाधोपयामि देवयजने पृथिव्याः मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे अश्वस्य त्वा वृष्णशक्नाधोपयामि देवयजने पृथिव्याः मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे जवे त्वा साधवे त्वा सुक्षित्यै त्वा
मखायत्वा मघस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मघस्य त्वा शीर्ष्णे मखायत्वा मघस्य त्वा शीर्ष्णे यमायत्वा मखायत्वा सूर्यस्य त्वा तपासे देवस्त्वा सविता मध्वाः नक्त्व पृथिव्या सज्ञस्पृशस्पाहे अर्चिरासे शोचिरासे तपोसे पुरस्तादग्नेराधिपत्य आयुर्मेदा पुत्रवादे दक्षिणत इन्द्रस्याधिपत्ये प्रजां मेदाः सुषदा पश्चात् देवस्य सवितुराधिपत्ये चक्षुर्मेधा आश्रुतिरुत्तरतो धातुराधिपत्ये राजस्पोषं मेदाः निधृतिरुपरिष्टात् बृहस्पतिराधिपत्य जो मेधा विश्वाभ्यो मानाष्ट्राभ्यस्पाहि मनो विश्वासे स्वाहा मरुद्भ्यः परिश्रेयस्व दिवः सज्ञस्पृशस्पाहे मधु मधु गर्भो देवानां पितामतीनां पतिप्रजानां सन्देवो देवेन सवित्रागतसग्सूर्येण रोचते समग्निरग्निनागत सन्दैवेन सवित्रा सग्सूर्येण रोचिष्ठा स्वाहा समग्निस्तपासागत सन्दैव्येन सवित्रा सग्सूर्येणारुरुचता धर्ता दिवो विभाजितपासस्पृथिव्यां धर्ता देवो देवानामर्त्यस्तपोजाः वाचमस्मिन् यज्जते वायुवम् अपश्यं गोपामणे पद्यमानमाच पराजपतिभिश्चरन्तम् ससद्रे चेष्विशोचिर्वसान आवारे वर्ते भुवानेष्वन्तः विश्वासां भुवां पदे विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते सर्वस्य वचसस्पते देवश्रुत्वं देवकर्म देवो देवान् पाह्यत्र प्रविरणो वान् देववेदये मधुमाध्वेभ्यां मधुमाधोजेभ्यां हृदयत्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ऊर्ध्वो अध्वरं दिवि देवेषु होत्रायच्छा दिवि देवेषु अध्वरं दिवि देवेषु देहि पितानोऽसि पितानो बोधि नमस्ते अस्तु मामाहिज्ञसे तुष्टमन्दस्त्वा सपेम पुत्रान् पशोन्मये देह्यरेष्टाहव्य सहपत्या भूयासम् अह केतुना जुषताग्सुज्योतिर्ज्योतिष स्वाहा रात्रिः केतुना जुषताग् ज्योतिर्ज्योतिष स्वाहा रात्रिः केतुना जुषताग् सुज्योतिर्ज्योतिष स्वाहा देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाहुभ्याम् ओष्णहस्ताभ्याम् सरस्वतीरास्नासि इळयेह्यदिदये ह्यका सुत्येहि असावेह्यसावेह्यसावेहि अदित्यैरास्नासेन्द्राण्या उष्णेषाः उषासे घर्माय देष्वा अश्वेभ्यां पिन्वस्व सरस्वत्यै पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्वा स्वाहेन्द्रावत् 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 यस्ते स्तनश्रशयो यो मायो भोर्यो रत्नधावासुभिर्यत्सुदत्राः
येन विश्वा पुष्या शिवार्याणि सरस्वतितमिह गतवेगः पूर्वन्तरिक्षमन्वे मे गायत्रं छन्दोऽसि त्रेष्ठो भञ्छन्दोऽसि द्यावा पृथिवीभ्यान्त्वापरे गृह्णाम्यन्तरिक्षेणोपगच्छामि इन्द्राश्विनामधोनः सारघस्य घर्मं तवसा वो जातवाट् स्वाहा सूर्यस्य रश्मये वृष्टिवनाय समुद्राय त्वावादाय स्वाहा शरीराय त्वावादाय स्वाहा अनादृश्याय त्वावादाय स्वाहा प्रतिदृश्याय त्वावादाय स्वाहा त्वावादाय स्वाहा शिमिदाय त्वावादाय स्वाहा செந்தாமரை மலரில் செம்மாந்து வீற்றிருக்கும் நந்தா விளக்கே நறுந்தார் இளம் கொழுந்தே என்று கம்பநாட்டாழ்வார் இந்த மலர்மகளை போற்றினார். அந்த மலர்மகளே இதோ நமது ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார். தாமரை மலரிலேயே தோன்றிய தாயாருக்கு இது சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி இதோ ஷோடச உபச்சாரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் ஒரு விசேஷத்தையும் நாம் பார்க்கலாம். தாயாருக்கு எம்பெருமானின் சார்பாக திருமாங்கல்யம் சமர்ப்பித்த பிறகு சீனிவாச பெருமாளின் விக்கிரகத்தை தாயாருக்கு பக்கத்தில் ஏலப்பண்ணி அதன் பின்பு மாலை மாற்றும் கைங்கரியம், தலம்புராலு போன்ற சடங்குகளை செய்வார் அர்ச்சக சுவாமி. ஆனால் திருமலையில் திருவேங்கடமுடையானின் நித்திய கல்யாணோத்சவத்தில் உபயநாச்சியமார்களுக்கு திருமாங்கல்ய தாரணம் முடிந்த பின்னர் தேவிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு இரு பக்கமும் ஏலப் பண்ணுவதை நாம் தினமும் கவனித்திருக்கிறோம் அல்லவா? இதிலிருந்தே திருச்சானூரில் எம்பெருமான் தாயாருக்கு எந்த அளவு ஏற்றம் கொடுத்து தானே தாயாருக்கு அருகில் வருகிறார் என்பது புரிகிறதல்லவா? ஆகவேதான் இந்த திருச்சானூரை அலர்மேல் மங்காபுரம் என்று பெருமைப்பட வைத்திருக்கிறார். இதே போன்று தமிழகத்தில் தெற்கே திருநறையூர் திவ்ய சேத்திரத்தில் பிரார்த்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த ஸ்தலத்தை நாச்சியார் கோவில் என்று அழைக்க பெற்றிருக்கிறாராம் பெருமாள். அது மட்டுமல்ல, வீதி புறப்பாடு போதும் தாயார் முன்னே செல்ல பெருமாள் பின்னே வருவாராம். இதை நையாண்டியாக திருமங்கை ஆழ்வார் தனது பாசுரத்தில் பிராட்டி பக்கலிலே பிச்சேரி தன் ஊரை அவள் பெயராக வாங்க அருளினான் என்பார்கள். அது அப்படி அர்த்தம் அல்ல. அங்கே நமக்கு தெரிய வருகிறது பிராட்டியின் பெருமை. ஆகவேதான் தெய்வ திருமங்களை குறிப்பிடும்போது கூட சீதா கல்யாணம், ஆண்டாள் கல்யாணம், ராதா கல்யாணம், ருக்மணி கல்யாணம், ஸ்ரீ பத்மாவதி பரிணயம் என்று தாயார்களை குறிப்பிட்டுத்தான் சொல்கிறார்களே தவிர எந்த கோவிலிலாவது ராமர் கல்யாணம், ரங்கநாதர் கல்யாணம், கிருஷ்ணர் கல்யாணம் என்று சொல்லும் நடைமுறையை பார்த்திருக்கிறோமா? பெண்மையின் முக்கியத்துவம் அப்படி. அது மட்டுமல்ல, நமது ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் அந்த அளவு முக்கியத்துவத்தை எம்பெருமான் வழங்கியுள்ளார். இதோ தாயாருக்கு எம்பெருமானின் சார்பாக திருமாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே திரம்பிகே தேவி ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே. சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே திரம்பிகே தேவி ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று தாயாரையும் எம்பெருமானையும் இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற இருப்பது கற்பூர மங்களஹாரதி.
स्वाहा रुद्राहूर्ध्वभ्यो कर्मपावभ्य स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा रुद्राय रुद्रहोदये स्वाहा संज्योतिषा ज्योतिः अह केतुना जुषदाज्ञसज्जोतिर्ज्योतिषा स्वाहा रात्रिः केतुना जुषदाज्ञसज्जोतिर्ज्योतिषा स्वाहा मधुहुतमिन्द्रातमे अग्नास्यामाते देवघर्मणमस्ते अस्तु मामाहिग्यसेः अभीमं माहिमादिवं विप्रो बभूव सप्रथाः उतः श्रवासा पृथिवेज्ञसज्ञसेदस्वमहाौ अस्य रोचस्व देववेतामहा धूममग्ने अरुषं मे यद्यसृजप्रशस्तदर्शताम् याते कर्म दिव्या शुग्या गायत्र्याग्रह विर्धाने साताप्यायतान्निष्ट्यायतां तस्येते स्वाहा याते कर्मान्तरिक्षे शुग्या तृष्टुभ्याग्नेद्रे साताप्यायतान्निष्ट्यायतां तस्येते स्वाहा याते घर्म पृथिव्याग्रशुग्या जगत्याग्रसदस्या साताप्यायतान्निष्ट्यायतां तस्येते स्वाहा क्षत्रस्य त्वा परस्पाय ब्रह्मणस्तन्वं बाहे विशस्त्वा धर्माणा वयमनुक्रामामसुविदायनं व्यासे चतुस्रक्तर्णाभरतस्य सप्रथासनः विश्वायुः सप्रथासनः सर्वायुः सप्रथाः पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोते सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा चक्रमे त्रेदान दधे पदं समोढमस्य वागं सुरे स्वाहा सप्तर्षय सप्तधाम प्रियाणे सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ते सप्तयोने आपृणस्व घृतेन स्वाहा त्रेदानि दधे पदं समोढमस्य वागं सुरे स्वाहा
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ गोविन्द